नमः। तो इस बार जो श्लोक है विवेक चूड़ामणि के 50 श्लोक हैं, isn't it? और जी निवेदिता और तू करोगे ना? जी महाराज। हाँ 46 है। अच्छा 46 है, ओके। स्टार्ट करूं महाराज? हाँ स्टार्ट करो। हाँ। Om, I offer my pranam to Thakur, Ma and Swamiji. With the grace of Thakur, I became the instrument in the hand of Thakur to conclude the beautiful Shastra of Vivek Chudamani, which is written by Shankaracharya. So I am giving more pranam to Thakur. My pranam to Srimad Shankaracharya and Swami Brahmeshananda, and my good wishes to all my colleagues. Today we are going to discuss the 46 shlokas from 534 to 580. There are 10 topics in this Shastra. First, I will enumerate the topics. First is the Brahma is the only illuminator. Second topic is why should we have the Brahma Gyan? Third is what are the signs of Brahma Gyanis? And fourth is how does the Brahma Gyani take their prarabdha karma? After that, fifth is how does they take their death? And then the next topic is bondage and liberation. After that, the dialogue of Guru after giving Upadesh. And the disciple, what happened to disciple? The eighth one. And ninth is who is Adhikari of this Shastra. And last is why Shankaracharya has written this Shastra. The first topic, Brahma is only illuminator, through which all Vedas, Shastras, Puranas, all beings are able to get their existence. Who can illumine Brahma? Nobody. This is the 534 slok. Why does we have Brahma Gyan? Brahma is the self-effulgent of infinite power and beyond the range of conditioned knowledge. Realizing Brahma, the best among the best, and that is incomparable. Brahma Gyani lives a glorious life and freed from all bondages. Brahma is aprameya. That means our sense organ cannot measure Brahma. The fourth topic is the longest topic. That is the what are the signs of Brahma Gyani from 536 to 558. So I have taken only the signs of the Brahma Gyani. About 20 signs are there. First is Brahma Gyani are neither grieved nor elated by the sense objects and sense pleasure. Second, neither they are attached to the or averse to the sense object, people or place. Brahma Gyani are always happy with the self. That is called Atmarati or Atma Kridavat. Fourth is as a child forgets the pain and hunger while playing the toys, in the same way, Brahma Gyani is always happy forgetting the ego and attachment. He is always, he does not worry about his food. He is happy to eat whatever he gets. He does not bother about the good food or the low quality of food. Next is, they drink water from the river with satisfaction. They move around independently without fear. Next is, they can sleep anywhere, either in the forest also or in the cremation ground also. They does not bother to wash their clothes and does not bother about their clothes. They can be without clothes, they can be scanty clothes, or they can be with the bark of the trees. And depending on these, three names are given. One is Digambar, one is Ambar, and one is Twak Ambar. He is always happy with the Vedanta Chintan and Brahman. He does not
wear any outward mark like tilak or commander, then no mark is there. He lives without body consciousness, experience all sort of sense objects as they come and through the other people without any attachment. He lives like any of the three signs are there. There, one is Balvat, one is Unmattavat, and one is Pishachvat. It is written in Kathamrita also. They live alone. They are happy. They are enjoy sense organ without any attachment. They are the embodiment of the desirelessness and always satisfied with the self. They can be fool. They can be a great sage. Sometimes they can be big king, and sometimes they are wandering monks. Sometimes they are like Ajagar or Python, lives at one place without doing any work. Sometimes they are insulted, sometimes they are honored, and sometimes nobody knows them, but they live in bliss. Brahmagyani are always content, maybe with the poverty or maybe with the riches. They are helpless, but they are powerful. They are without food, but they are satisfied. Nitya Tripta. Though without exemplar, yet they looking upon all person as same. Abhed, they have abhed drishti. Though doing work, but they are inactive. He is experiencing the fruits of his past karma, but untouched by them. They are looks limited, but they are omnipresent. They either good or evil, pleasure or pain, or nothing affects the Jivan Mukta person. Jivan Mukta, this person, as they have no body consciousness. Two beautiful examples have been given in Vivek Chudamani for this. As a snake leaves their covering, and they are never take back the covering, they don't bother about the same way. Brahmagyani, they have the absence of body consciousness and they don't have ahankara, so they live like they don't bother about their body. The second example is log of wood. As the log of wood goes up and down in a flowing river, same way Brahmagyani also lives in this world very happily with sukha and dukkha. They are not affected. The next topic is how do they take the prarabdha karma phal. For example, this is a beautiful example. As a pot maker have the wheel, for making the pot, the wheel revolves, but the center of the wheel remains same, stands still, pivot. So Jivan Mukta are also so many in the sansar, they remain in the Brahma Gyan only. So they are not bothered about this world. They remain as a drashta. He neither directs any sense organ to their object nor detach the sense organ from the objects. They are like drashta. He has no regards for the fruit of action, always in bliss of Atma. The next is his beyond lakshya and alakshya. Lakshya is we have to do so many japa, dhyan, dharana, this one. And alakshya is we have to go away from the Vishaya Chintan, but they are without them, both beyond them, beyond lakshya and alakshya. Then they are always mukta, liberated, while they are living in the body and they experience Brahmananda. How does they take their death? Moksha is not giving up this body, but outward insignia, like the Danda Kamandali and this one. But moksha is through the destruction of avidya, that is a chit jad granthi. So Jnanis, they do not seek holy place or holy time for their death. They are one. They are always one with Brahma. So they all do not worry after their death where they will be cremated and what rituals they will do. They are not bothered for that. Atma is Pragyana Gana, the embodiment of the knowledge. As the death, at the destruction of the apparent limitation like the upadhis and all, the Shruti is telling us, verily the Atma is immortal.
The beautiful example is also given here, that the stone, trees, paddy, husk burnt, they burnt with the fire. Same way, while objective universe comprising of this body, organ, prana, manas, they also when they burn with the fire of the realization, fire of knowledge, so they reduce to only supreme self. Now the Brahmagani do not have the transmigration and they become one with Brahma. Then bondage and liberation. What is mukti? What is bandhan? Are attributes, these are bondage and these are the attributes of buddhi and manas. Ignorant people falsely superimpose the Brahman with this. The bondage is created by Maya. The most important and the beautiful shlok of Vivek Chudamani is 574. That is, na nirodho, na cha utpatti, na baddho, na cha sadhaka, na mumukshu, na mumukshu, na vaimukta, ittesha paramarthata. This means the object is produced, no object is produced, no object is destroyed, no bondage and no liberation, as Atma is Swaprakash. There is no sadhaka, no mumukshu, nobody is liberated, only Atma is there. This is the final truth. Now, who is... this shloka is... this shlok is... This shlok is actually... also in Amrita Bindu. Originally, this shlok is from... from Amrita Bindu Upanishad and also in Mandukya Karika. God Karika. Yes. Now the declaration of the Guru. After giving Upadesh, Guru is telling, I have repeatedly revealed the truth as I would have revealed to my son. So, this is a profound secret and I have given because you have got all signs of mumukshu. So, this is the Vedanta purport of Vedanta, crest of Vedanta Vivek Chudamani. Because you are freed from ego and desire, that's why I have given you the Upadesh. The disciple, after Shravan of Guru Vakya with Shraddha and Bhakti, he bows down the Guru and Guru is with his permission, he went to some other place and Guru also merges with the Brahmananda and he also starts roaming happily. Atmagyani. For the mumukshu like us, this is a very difficult subject, but Atmagyan was explained through the Guru and Shishya dialogue. So the ninth topic is, who is Adhikari of this Vivek Chudamani? Those who have Shraddha and Shuddha Chitta. Those who are always, they are always from this, away from the sansara sukh. Those who are calm, who has the calm mind and devotes the time there in the study of Vedanta, and those who have no desire for the worldly things. The last topic here comes the Shankaracharya, why he has written. Shankaracharya, this is the last slok. For those, he has written for those who have affected in the way, who has affected in the way of world by the burning pain and due to the scorching sunset with the threefold misery, Adhyatmik, Adhidaivik and Adhibhautik. These, and through the delusion, wander here about the about the desert, about in the desert for the water. For them, a triumphant message of Shankaracharya pointing out within easy reach and soothing ocean for and the soothing ocean of nectar of Brahma has been given, which is one without the second, to lead a peaceful and desireless life. Thank you. Very good. Very Thank you. ये तुम कहाँ से मिला इसको, तुमको ये सब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये शिवा कहाँ से मिला? इसी में हमारा अपने शास्त्र में। नहीं वो तो ठीक है, तो भाई अच्छा 10 पॉइंट कैसे बनाया उसमें, ये मुझे समझ नहीं। ये तो अपने आप ही बनाया।
वेरी गुड वेरी गुड। और उसके Last बाद time- मैं ये भी किया था। लास्ट टाइम हमको बहुत डांट पड़ी थी ना आपसे। बहुत अच्छा किया, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर क्वेश्चन करें। हाँ, प्रणाम महाराज जी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में सबसे पहले है, जो क्वेश्चंस पहले जिसके आते हैं उसके वो उसी अनुसार मैं करता हूँ, जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार। सबसे पहले भुवन मित्तल का क्वेश्चन आए थे। भुवन मित्तल। हाँ जी महाराज, पहला हाँ। क्वेश्चन है वर्स नंबर 558 में से, What are the knots of the heart? Are they the obstacles to samadhi such as asmita, rag, dvesh and abhinivesh? अच्छा, ओके। ये जो है ना, नॉट्स ऑफ हार्ट, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे विपरावरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध श्लोक है, कई जगह पे आया है ये, और ये मुंडक उपनिषद में पर्टिकुलरली आया है। और वहां पे उसको बोलते हैं कि हार्ट का यहाँ है तो बुद्धि, और अविद्या ग्रंथि, ग्रंथि यानी क्या, नॉट। तो उसमें दो बात शब्द आते हैं, ये चित्त जड़ ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। तो इग्नोरेंस के कारण जो तुम वो उसमें बोलते हैं ना, जो तुमने 5 बोला है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो इन 5 क्लेश को चित्तगढ़ ग्रंथि से अलग करते हैं, लेकिन उसमें पहला जो है वो अविद्या इज नॉट इम्पोर्टेंट, और उसके बाद दूसरा जो उसका वो किया है वो है चित्त जड़ ग्रंथि। ग्रंथि इज ए नॉट, बांधा है, 2 रस्सी को बांधा है। तो कौन सी रस्सी है? एक चैतन्य की रस्सी है और एक जड़ की रस्सी है। तो ये हमारा शरीर जो है वो तो जड़ है, और हमने उसको चैतन्य के साथ बांध के शरीर को हम जड़ समझने लग गए हैं, अचेतन समझने लग गए हैं। तो ये हो गई जड़ ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि। ये हमारी बुद्धि में है, इसको काटना पड़ेगा। गांठ है, गठान बन गई है, इसको काटना पड़ेगा। तो ये मुंडक उपनिषद में आता है। उसका शंकराचार्य ने थोड़ा सा कमेंट भी करते हुए यही कहा है कि ये वासना, संस्कार और वासना जो अविद्या के कारण बुद्धि में पड़ते हैं, इस प्रकार का किया। ओके, हाँ जी अब महाराज। उसके अंदर तुम वो काम क्रोध लोभ मोह वगैरह जो चाहो वो सब ले सकते। ठीक, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, ये है वर्स नंबर 571 में से, Are both bondage and liberation false because Atma simply is and we can't apply any upadhi to it? And is Atma same as Brahman? आत्मनि सेम एज ब्रह्म, हाँ जी। आत्मनि सेम एज ब्रह्म। हाँ जी। तो बॉन्डेज एंड लिबरेशन फॉल्स है महाराज जी, क्योंकि आत्मा की कोई उपाधि नहीं हो सकती। बॉडी से लिबरेशन। अच्छा जी, ठीक है। बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं मेंटली, यानी विचार के द्वारा। वी नो दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द आत्मन, आई एम ब्रह्मन। दिस हाँ नॉलेज इज ब्रह्म ज्ञान, बाय दैट आई गेट लिबरेटेड। अच्छा जी। तो अब तीसरा सवाल है, कौन सा श्लोक है ये? महाराज ये तो ऐसे पूरे ओवरऑल ही है, किसी अच्छा, श्लोक में से ओके, नहीं है। ठीक, तो ये है, ठीक है। अपरोक्ष अनुभूति क्या आनंदमय कोश में होती है, और क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बुद्धि में होता है? हाँ, क्योंकि ठीक है, बुद्धि ठीक है। आत्मा। आनंदमय कोश और आनंदमय होता है, वो आनंदमय कोश बुद्धि में ही होता है। तो एक्सपीरियंस जितने भी होते हैं सब यह है बुद्धि में होते हाँ जी। हैं। एक्सपीरियंसेस, गॉड रियलाइजेशन तो बोलते हैं, ईश्वर दर्शन हुआ, ये सब जो भी होता है, ये सब जो है ये बुद्धि में होता हाँ जी। है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, इट इज क्लियर महाराज।
हाँ जी। महाराज महाराज, आत्मज्ञान हो में गया? तो ये अच्छा। बुद्धि और माइंड चला जाएगा ना। हाँ? सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मज्ञान में बुद्धि और मन तो चला जाएगा, फिर एक्सपीरियंस कैसे होगा? वो उसके बाद चला जाता है, बुद्धि और बुद्धि में होता है और उसके बाद में बुद्धि विलीन हो जाती है। वो शुद्ध बुद्धि हो जाता है शायद ना? शुद्ध बुद्धि जो है, शुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्धि एक हो जाता है, हाँ। माने माइंड गायब हो जाता है। तो वो अल्टीमेटली ये यू हैव टू हैव द एक्सपीरियंस इन द इंटेलेक्ट, बुद्धि में एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। और उसके बाद में यू नो दैट बुद्धि भी मिथ्या है। ये एक्सपीरियंस कहाँ होगा? अल्टीमेटली बुद्धि में होगा। हाँ जी। और उसके बाद में व्हेन यू इन समाधि समाधि यू मर्ज, व्हेन यू मर्ज इन समाधि, उस समय फिर बुद्धि भी नहीं रहती। तो क्या रहता है कुछ बोल नहीं सकते। हाँ यू जी कैन महाराज। नॉट से दिस इज आत्मा, यानी बोलना भी नहीं होता है। हाँ जी। पुरामणि में भी है, स्वगतम केन वा नीतम। अभी तक सब कुछ था, अब कैसे हुआ, सब गायब कैसे हो गया? तो वो बाद में हो जाता है, अल्टीमेटली होता है, बट एक्सपीरियंस तो होना पड़ेगा। हाँ और ये जी। एक्सपीरियंस इनका बुद्धि में होता हाँ जी है। महाराज। एक और, निवेदिता हुआ? जी अब महाराज। एक और महाराज, आप जी महाराज, ठीक है, बिल्कुल। भुवन जी का एक सवाल रह गया ना। हाँ, बोलो। हाँ स्वामी बोलो जी, आप भुवन, बोलो। महाराज जी, आपने बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी का दर्शन किया होगा, तो आप उनके बारे में मैं सुन कुछ नहीं पा रहा बता हूँ। दीजिए। कैन यू टेल अबाउट सम ब्रह्मज्ञानीज दैट यू हाँ? हैव मेट? ऐसा है कि कैसे बताएं कि वो ब्रह्मज्ञानी थे? ऐसे तो बहुत सारे हमने संतों को देखा। यतीश्वरानंद जी थे, नागपुर के भास्करेश्वरानंद जी थे, इस प्रकार के। और फिर बेलूर मठ के वीरेश्वरानंद जी थे। तो अब हम तो कोई जज नहीं है ना। एक ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी को जान सकता है। हम कैसे जानेंगे कि वो कितने बड़े थे, कितने कोटि के थे? और इतने सीनियर साधु के साथ यहाँ पे रहे बनारस में, उनकी सेवा की। अब उसमें कैसे बताएं कि कौन ब्रह्मचारी के ब्रह्मज्ञानी था? ये हमारे ओके। मेरा जी। हो गया जी। क्या हुआ? चलो, क्या हुआ? अब हो गया? हाँ जी। महाराज क्या हुआ? आवाज सुनाई नहीं बेलूर दे मठ रही है के मेरे? महाराज बेलूर मठ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना। ये मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं मालूम। महाराज, ठाकुर और तेलंगे स्वामी जब मिले थे तो वो दो ब्रह्मज्ञानी का मिलन था ना? हाँ, वो तो ठीक है, दैट इज वेल। चलो, और अब आगे चलो, नेक्स्ट। भुवन का हो गया। हो गया? हाँ जी। अच्छा, चलो। ईतू है कि नहीं? ईतू? हाँ, जी, ये तो है। प्रणाम महाराज। हाँ भाई, आ महाराज, जाओ। मेरा पहला प्रश्न है 531 श्लोक। ये दिलीप भाई ने पूछा था, लेकिन हमें बहुत क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए उसका हम फिर से पूछ रहे हैं। तो वो श्लोक है 531। जी 531। So this Atman, which is an internal verity, manifests itself as soon as the right means of knowledge is present and does not depend upon either place or time or internal purity. So ये हमें फिर से पूछना है कि please explain this sloka, and these momentum of past actions cannot be reduced by intense and careful japam. नहीं, ये नहीं। ये क्वेश्चन ये नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है पहले क्वेश्चन, वाले। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। हाँ, हमें पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें ये बोल दीजिए, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए कि You see, right? जी
राइट मीन्स की बात कही ना, जी वहां देखो विवेक चूड़ामणि में जहाँ पे ये श्लोक है वहां पे फुटनोट किया है। हम्म, जी फुटनोट में लिखा है अपरोक्षानुभूति। हम्म देखो मीन्स यानी क्या, हाउ डू यू गेट नॉलेज। तो होता है जी श्रवण मनन निधिध्यासन, इतना तो समझते हो। जी जी हाँ, तुम सुन जी रहे हो, उसके बाद सोचोगे ये बातचीत हुई है, एक जूम मीटिंग संडे को ही, उस एक सप्ताह तक उसको विचार करना है, निधिध्यासन करना है, और कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा हूँ तो उस आत्मा के भाव में कंटिन्यूअसली बना रहना, इसको बोलते हैं अच्छा निधिध्यासन। जी हाँ, तो इस निधिध्यासन से क्या होता है, अल्टीमेटली यू गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ओ दैट आई एम ब्रह्मन या आई एम आत्मा। ओके, जी तो इसको जी कहते हैं राइट मीन्स, दीज आर द राइट मीन्स, श्रवण मनन निधिध्यासन और अपरोक्षानुभूति। तो ये राइट अच्छा मीन्स का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। नाउ व्हाट जी अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है श्लोक नंबर 550, श्लोक नंबर 550। हाँ इसमें है एज ए पीस ऑफ वुड इज borne by the current to a high or low ground, so is his body carried on by the momentum of past actions to the varied experience of their fruits, as these present themselves in due course. तो मेरा प्रश्न है कि please explain this sloka, and this momentum of past actions cannot be reduced by intense and careful japam. My question is, cannot be reduced by intense and careful japam, this momentum of यस, past actions. मोमेंट थोड़ा कम तो हो जाएगा। ये कौन सा श्लोक नंबर? 550। 550। हाँ, जी मोमेंटम तो कम हो जाएगा, यानी प्रारब्ध जैसे कर्म का। हाँ, प्रारब्ध कर्म जो है उससे थोड़ा तो कष्ट पाओगे, अच्छा लेकिन तो भगवान में मन लगा रहेगा तुम्हारा, जब ध्यान करोगे तो कष्ट जो है वो कम लगेगा। कम लगेगा। और जो संसार अच्छा में व्यक्ति है उसको अगर बीमारी होती है तो सारा मन वो बीमारी में लग जाता है, वो बीमारी उसको ज्यादा लगने लग जाती है। लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको भी बीमारी होती है, लेकिन वो भगवान के भजन में इतना मस्त रहता है कि उसको बीमारी कम लगती है। तो ये बीमारी जो है वो प्रारब्ध कर्म के कारण हुई, बट जी इट इज रिड्यूस्ड व्हेन यू डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हाँ वो तो हुआ कि हम नहीं समझ सकते, मेरा मन दूसरी तरफ लगा रहता है, लेकिन इंटेंसिटी कुछ कम नहीं हो जाती, सफरिंग का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, हाँ, वो माँ शारदा ने बोला है ना जी जी कि सूली चढ़ने वाली थी, उसके बदले एक तीर तो, एक सुई सुई तो सुई चुभेगी। हाँ तो उतना। इंटेंसिटी कम डेफिनेटली हो जाती है। अच्छा यही है, तो उसमें ठीक है। इंटेंसिटी कम होने में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो डोंट अच्छा बॉदर अबाउट द बॉडी, फिजिकल बॉडी एटसेट्रा। और दूसरा ये है कि अच्छा फिजिकल इंटेंसिटी भी कम हो जाती अच्छा है। अच्छा अच्छा मेरा थर्ड प्रश्न है 553। 553 he who giving up all considerations of the fitness or otherwise of objects of meditation lives as the absolute Atman is verily Shiva himself, and he is the best among the knowers of Brahman. So मेरा प्रश्न तो मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये ठीक से समझ में नहीं आया। ना ऐसा है कि लक्ष्य अलक्ष्य गतिं त्यक्त्वा, हमारे जीवन में एक गोल है, isn't it? We are जी acting
हमने भगवान का दर्शन करना है, ये हमने गोल बना लिया है। हम लोग संघर्ष जी। कर रहे हैं, एक लक्ष्य बना के हम लगे हुए हैं। तो वो क्या है, जो ब्रह्मज्ञानी है वो क्या है कि वो उसको लक्ष्य नहीं, देयर इज नो गोल टू बी अचीव बिकॉज यू ऑलरेडी अचीव द गोल। तो लक्ष्य अलक्ष्य गति त्याग करके जो केवल आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो जी। स्वयं मानो शिव बन जाता है। He becomes as अच्छा। it were शिव alone। और अच्छा। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जो है वो शिव जैसा हो जाता है। कोई गोल, टारगेट, लक्ष्य उसके जीवन में नहीं होता। ठीक ठीक है। और मेरा फोर्थ, क्यों, इज दैट क्लियर? हाँ ये बिल्कुल क्लियर। ये फोर्थ है 563। 563 the sloka is just as a stone, a tree, grass, paddy, husk, etc. when burned are reduced to earth, ashes only, even so the whole objective universe comprising the body, organs, pranas, Manas. manas, manas and so forth are, when burned by the fire of realization, reduced to the supreme self. यह है 563। और मेरा प्रश्न है, when the body is burnt, it is reduced to ash. This is what we know. But what happens to the subtle body of the realized soul? वो they get merged into cosmic mind। यानी जो अच्छा। शरीर, जब उसका ब्रह्मज्ञानी का शरीर फिजिकल बॉडी जाता है तो वो तो खत्म हुआ। जी। वो को या तो गंगा में फेंक दिया या उसको जला दिया, तो वो तो सब रिड्यूस हो जाता है। हम लोगों का भी शरीर किसी ब्रह्मज्ञानी के सिवा जो अज्ञानी है उसका भी शरीर जो है वो जला देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। जो जी। सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरा दूसरे किसी शरीर में घुस जाता है और हमारा नया जन्म हो जाता है। जी। लेकिन जो ब्रह्म के शरीर में, वो बृहद ब्रह्मांड में, ये बृहद जो वो शरीर है उसमें वो विलीन हो जाता है। ओ। हाँ, वो पूरा अच्छा। कॉस्मिक शरीर, कॉस्मिक जो माइंड है Mind में। उसमें वो विलीन। अच्छा ठीक है। प्रणाम महाराज। हो गया। ओके ओके ओके। देवाशीष साहब। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। मेरा पहला क्वेश्चन है महाराज जी, वर्स नंबर 534। तो वर्स पढ़ूं थोड़ा। ये वर्स में है, व्हाट इंडीड कैन इल्यूमिन दैट इटर्नल सब्जेक्ट बाय व्हिच the Vedas and Puranas and other scriptures as well as all beings are endowed with a meaning. So my question is, how the soul, the eternal subject, enrich or endow the meanings of Vedas and Puranas and other scriptures? ना उसको, आत्मा को हटा लो ना। You remove the आत्मा, ब्रह्म को। तो उसका मीनिंग रहेगा क्या? नहीं The whole universe is getting its meaning because of the Atman। तब आत्मा को हटा लेने कोई रहेगा नहीं। There is absolutely no sense remains। तो वेद, शास्त्र, पुराने, भूत लोग, सारे प्राणी जिनके कारण वे अर्थवान होते हैं, उस विज्ञाता को, ज्ञानवान जो है उसको कौन प्रकाशित कर सकता है? तुम क्या देखोगे? उसके प्रकाश से सब हो रहा है। अरे सूर्य के कारण सब प्रकाश हो रहा है, सूर्य को हटा लो तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधकार ही अंधकार होगा। तो उस सूर्य को क्या तुम प्रकाशित करोगे क्या? जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज, समझ में आया महाराज जी। थैंक यू महाराज जी, समझ में आया, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, वर्स नंबर 535 वर्स में है, हियर इज द सेल्फ इफल्जेंट आत्मन of the infinite power beyond the range of conditioned knowledge, yet the common experience of all realizing, which alone is incomparable knower of Brahman,
lives his glorious life freed from bondage. My question is, can we as a devotee tap this infinite power of Atman? Already है. अरे इसीलिए तो ये क्लास शास्त्र क्लास हाँ. इसलिए कर रहे हैं. We are wasting so much of time just because of this. And you are asking question, Shravana, Manan, Nidhi, Dhyasan karo. What we are doing every week is Shravana, listening. Yeah, Now for 1 week you must do Manan. Think about it, what we have discussed. How can that Ji, ma'am. happen? Vivek Chudamani, the idea is this. We are giving 1 week earlier so many 40-50 shlokas so that you will do, listen, read it. And then in the Ji, ma'am. class you will listen to it. And Ji, ma'am. then you have to put it into manana, think about it, and then when you come to a conclusion, you hold on to that conclusion that I am. By that you will experience it definitely. जी महाराज जी, जी महाराज जी, समझ में आया महाराज. Thank you महाराज जी. समझ में आया नहीं? That has to be put into practice. We must live that. जी महाराज जी. Okay. महाराज जी सगे बी पार्ट आंसर हो गया. अभी अभी बताया आपने, ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, 536. Satisfied with undiluted constant bliss, he is neither grieved nor elated by sense objects, is neither attached nor averse to them, but always disports with the self and takes pleasure therein. My question is, if the knower of Brahman is given to sense pleasure, will he accept it or reject it? The non-attachment. तो उसके सामने जलेबी आएगी तो खाएगा तो. खाएगा. Is the non-attachment? खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? अच्छा. Without attachment भी खाएगा. Without खाएगा लेकिन without attachment. उसको याद नहीं रहेगा कि मैंने खाया कि नहीं खाया. अच्छा अच्छा. जी महाराज जी. एक बच्चे को कुछ भी खिला दो खा लेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसको याद नहीं रहेगा क्या क्या है, खाना ही खाना. दूसरे दिन माँ ने जो दिया वो खा लेगा. So he is not bothered about what he is eating or what not. He is not attached to it, but accept it. मतलब एब्सेंट माइंडेडली खाएगा, मतलब क्या खा रहा है नहीं खा रहा पता ही नहीं है, खा रहा है, ऐसा है क्या? Yeah, whatever is being taken. That's all. Not necessarily absent minded. ठाकुर भी तो खाते थे. ठाकुर लाइक इट. बोलते रहे जी महाराज जी. महाराज जी वॉइस ब्रेक कर रहा है. Is that okay? हाँ जी महाराज जी. महाराज जी क्लियर हुआ. किसका? थैंक यू महाराज. हम लोग जलेबी खा के और 2 जलेबी मांगेंगे. हाँ. और 2 मांगेंगे और अगले टाइम के लिए. नहीं, ठाकुर तो जलेबी को एस्टेब्लिश करने के लिए आए थे. ठाकुर ने जलेबी को एस्टेब्लिश कर दिया. थैंक यू महाराज. थर्ड क्वेश्चन महाराज जी. थर्ड क्वेश्चन धर्म स्थापन के साथ में जलेबी स्थापन भी हुआ है. हाँ, काबा ठुकुर में जलेबी बहुत फेमस है. ओके महाराज, थैंक यू महाराज जी. फोर्थ क्वेश्चन है वर्स नंबर 551. मैं पढ़ूंगा उसको. द मैन ऑफ रियलाइजेशन bereft of the body idea moves amid sense enjoyments like a man subject to transmigration through desires, endangered by prarabdha. He himself, however, lives unmoved in the body like a witness, free from mental oscillations, like the pivot of the potter's wheel. My question is, how a man of realization moves amid sense enjoyments like a man subject to transmigration? No, what is the question तुम्हारा? क्या है ये? प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलता है वो, यानी वो सचरति भुक्तिषु भोग, यानी वो देह से सिद्ध है, जो मिल गया वैसा करता है उसको प्रारब्ध के अनुसार. ये सब्जेक्ट टू ट्रांसमाइग्रेशन आ गया इसका. No, जैसा
संसारी लोग जो है, जो संसार के ट्रांसमाइग्रेशन वाला रहता है, उसी हाँ। तरह का वो भी करता है, लेकिन ही इज नॉट सब्जेक्ट टू ट्रांसमाइग्रेशन। अच्छा अच्छा, नॉन अटैचमेंट के साथ। यस, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज महाराज। जी, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। मतलब महाराज कि जी, महाराज समझ में आया क्वेश्चन? ये क्या नॉन अटैचमेंट तुझे का साथ ही पहला वाला क्वेश्चन का सुबीर पहला वाला आंसर के सुबीर साथ तू जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेन इट। हाँ महाराज, इस श्लोक में एक्सप्लेन किया है कि एक ऑनलुकर जो मैन ऑन द स्ट्रीट, उसको दिखता है कि वो वैसा कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। जो वो मैन ऑन द स्ट्रीट वो उसको ये सोचता है, लगता है कि ये, यानी he वो does not जो know कि वो ट्रांसमाइग्रेशन। ब्रह्मज्ञानी जो है वो सब कुछ करता दिखाई देता है दूसरे लोगों को, लेकिन वो जी जी, अनअटैच एग्जैक्टली। रहता है। यही तो अर्थ है ना। हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, महाराज समझ जी इसको महाराज जी इसको हिंदी में लिखा है, देहाभिमान से रहित जीवन मुक्त ब्रह्मन पुरुष प्रारब्ध कर्मों द्वारा कल्पित कामनाओं के द्वारा भोजन पान आदि विषयों में सामान्य संसारी लोगों के समान ही आचरण करता है, परंतु वो सिद्ध पुरुष स्वयं सभी संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर कुमार के चाक की नाभि या धुरी के समान शरीर में साक्षी भाव से परम शांति पूर्वक निवास करता है। ये हाँ इसका- बस। महाराज जी, समझ में आया तो महाराज इसमें जी। देवाशीष अब क्लियर। हाँ हाँ महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, देवाशीष। थैंक यू महाराज। हाँ महाराज जी, थैंक यू, अच्छा समझ में आया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स नंबर 553। He who giving up all such considerations as this is a fit object of meditation or and this is not, lives as the absolute Atman is verily Shiva himself and he is the best among no other Brahman. So मेरा क्वेश्चन है, how a man of realization lives as the absolute Atman? नहीं, ऐसा है कि ही इज फुल्ली आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मन आत्मन, और उसको ये लगता नहीं है कि मैं कुछ, यानी वो देह से पूरी तरह डिटैच हो जाता है भाई। Oh, जी यानी महाराज। ही इज फुल्ली डिटैच फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडी का जो फंक्शंस होता है तो उसमें क्या तो दिक्कत है उसमें? वो होगा। अपने चलते रहता है, बॉडी का नहीं फंक्शंस जो है। वो हमको he doesn't bother about body function। वो तो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो कुछ ना तो खा रहा हूँ, न चल रहा हूँ। he is fully Oh, detached from the body। हमको अच्छा। लगता है कि वो चल रहा है, बट वो he thinks that I am not doing it, I am आत्मन। अरे तुम चलते हाँ। रहे तो तुम चल रहे हो, मेरी बॉडी चल रही है, मैं थोड़ी चल रहा हूँ। I am fully detached with the body, I don't know about body, my body is not my body। You people think I am body, I am आत्मन। जी महाराज जी, ओके, थैंक यू महाराज जी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाता हूँ। वर्स नंबर 555। An actor, as an actor, when he puts on the dress of his role or when he does not, is always a man. So the perfect knower of Brahman is always Brahman and nothing else. My question is, we are always a Brahman whether we put on a dress or of our role or we do not. How householder devotees become the perfect knower of Brahman? After knowing the Brahman, तो अपने आप को जानोगे तो यार ब्राह्मण। हम तो ऑलरेडी श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद साधना के बाद द्वारा तुम ब्रह्म बनो। You realize yourself that you are Brahman by spiritual practice. Then only it will apply to you. It is only for Brahmagyani, not for the ordinary householder. Householder को intense spiritual practice करके ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, तब उनको लगेगा कि I am not the body। ये जो कपड़ा वड़ा पहनना हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जी महाराज, जी महाराज, समझ में आया। महाराज जी ये फिर क्या हुआ कि नहीं हुआ? Could you हाँ understand? हाँ महाराज जी, समझ में आया। महाराज जी एक मिनट, ये एक सवाल इन्होंने अभी पूछा और दिलीप भाई क्या बोल रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देवाशीष ने ये जो सवाल पूछा अभी जिस श्लोक में और 553 श्लोक में भी फर्क क्या रहा है? ये दोनों में एक सरीखा ही है।
553 में रीड करता हूँ। अजय ये सबका सब एक ही चीज चल रही है, सब सबका भी एक ही है, एक ही है, एक ही चीज डिस्कस हो रही है। एक ही चीज। यस, ये राइट। वर्स नंबर 556 में है क्वेश्चन, इसमें है कि लास्ट क्वेश्चन, लेट द बॉडी ऑफ द सन्यासीन who has realized his identity with Brahman wither and fall anywhere like the leaf of a tree. It is of little consequence to him, for it has already been burnt by the fire of knowledge. So my question is, how is it that the body of Noah of Brahman burnt by the fire of knowledge? जो इसका अभी तो दिख रही है, जली तो नहीं है, है ना? यही तो लग रहा है कि उनको आग तो लग गई है लेकिन शरीर जला नहीं है, यही तुम बोलना चाहते हो ना? फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अग्नि से जब जला है शरीर, यानी उसका शरीर जो है उसको लग गया कि ये ज्ञान हो गया उसको कि मैं बॉडी नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट चला गया, तो बॉडी नहीं रहा उसका। बाय नॉलेज, ज्ञान के कारण उसका आइडिया ऑफ दैट आई एम ए बॉडी हैज कंप्लीटली गॉट डिसअपियर्ड, बर्न्ड। ये तो एक एक पोएटिक वे में एक्सप्रेस किया गया है। तुम समझ रहे हो कि एक्चुअली के बर्न होता है क्या? अरे पोएटिक वे में कर दिया है कि मेरा जो शरीर है वो तो ज्ञान की अग्नि से जल गया है। अब तुम बोल रहे हो कि ज्ञान की अग्नि से जलता है तो मेरे को दिखता क्यों नहीं है, मेरे कपड़े क्यों नहीं जलते हैं, मेरी नाक कान जला कि नहीं करा? अरे ज्ञान की अग्नि से ये नाक कान जलते हैं क्या? फिजिकल अग्नि तो है नहीं है जी महाराज, ये माइंड की अग्नि है, बुद्धि की अग्नि है। बाय दैट नो मोर बॉडी नहीं रहती, ये तो पोएटिक रूप में कहा गया है, उसको तुम एक्चुअली ले रहे हो क्या? जी समझ में आया महाराज, समझ में आया महाराज, समझ में आया, क्या समझ में आया? बी में क्वेश्चन होता है, बी पार्ट में है महाराज, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में है, इज इट नॉट द माइंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ हिंड्रेंस टू द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन? Is it not the mind that is, is it not the mind that is the root cause of the hindrance to the knowledge of Brahman? हम लोग तो बॉडी के बारे में, बॉडी को सेपरेट कर रहे हैं, बॉडी को हमेशा सेपरेट कर रहे हैं कि सेल्फ से बॉडी को नॉन आत्मन बोल रहे हैं। इफ द बॉडी इज सेपरेटेड फ्रॉम द आत्मन देन वी गेट द ब्रह्म ज्ञान। नाउ इज इट नॉट द माइंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन? Yes, that is the root cause, that is true. And somewhere else it is told about it. वो माइंड से, माइंड में तो सब कुछ हो रहा है, सारा ज्ञान जो है मन में ही तो हो रहा है। In the mind I am knowing that I am not the body. तो माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्ञान जो होता है वो मन में ही होता है भाई। जी महाराज जी, जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, हो गया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। कैसे कैसे प्रश्न किए हैं, बड़ा सोच समझ के प्रश्न किया करो। सुबीर। हाँ प्रणाम महाराज। मजुमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज पहला सवाल है, हाउ टू प्रैक्टिस नॉन आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी? हमारे स्तर पे कैसे करें हम लोग? क्या है तुम्हारे, तुमने क्या कहा क्वेश्चन? क्या बॉडी से बॉडी कॉन्शियसनेस कैसे दूर करना, क्या बोला है? हाँ, हाउ टू प्रैक्टिस नॉन आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एट आवर लेवल, हमारे लेवल पे ये कैसे प्रैक्टिस? अच्छा ऐसा है कि सच पूछा जाए तो मैंने कोई अपनी लाइफ में कोई ये नॉन आइडेंटिफिकेशन को मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट पर्सनली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जी वी कैन डिस्कस। अच्छा, एंड दैट डिस्कशन इज हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टेंटली थिंक दैट यू आर पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव टेक्निक है, कॉन्स्टेंटली थिंक दैट यू आर आत्मा। ओके 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 महाराज। सेकंड नेगेटिव आया, आई एम नॉट द बॉडी। ओके। हाँ। थर्ड इज ड्यूरिंग एक्टिविटी, जी bear all experiences related to body without reaction.
अब संसार में जब कर्म अच्छा। करते रहो तो बॉडी में जो रिएक्शन हो, ओके ओके, हाँ शीत उष्ण होगा, शरीर में दुख दर्द होगा, हाँ हाँ सिर दर्द, उसको विदाउट रिएक्शन यू जस्ट बियर इट, फॉरबियरेंस से कहते हैं। फॉरबियरेंस, हाँ तितिक्षा, हाँ फोर्थ इज कांस्टेंट रिनंसिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये तो Constant- फंडामेंटल है साधना। हाँ जी हाँ जी। और मैंने ऑलरेडी कहा है डोंट रिएक्ट, ऑलरेडी कहा डोंट रिएक्ट। सो जी। आई थिंक दिस इज द वे वी कैन डू जी इट। जी Constantly remembrance of God, जी always thinking that I am not the body, not reacting during the activities, not जी जी giving too much importance to the actions of the body, etc. जी महाराज, Okay. ठीक है महाराज। एंड सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, निवेदिता जी ने भी बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया, पढ़ते सुनाया हमको। 535 से लेके 557 तक हाउ ए मैन ऑफ रियलाइजेशन, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, हाउ ही बिहेव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इट इज आल्सो वेरी मच लाइक द श्लोकास ऑफ तीर्थ प्रज्ञा, जो भगवत गीता के सेकंड Yes, चैप्टर में है, yes, take it. 55 to 72 तक। तो हाँ. माय क्वेश्चन इज दिस मैन ऑफ रियलाइजेशन जीवन मुक्ता? इसको क्या हम जीवन मुक्ता कह सकते हैं? और वही तो बोलता है, सेम थिंग। हाँ, जीवन मुक्ता ना, डज हिज स्टेट डिस्क्राइब्ड हियर come and go or is it permanent? No, unless it is permanent, you don't accept it. It has to अच्छा, become permanent. okay, so it is तो permanent. ओए, जीवन मुक्त रोज थोड़ा थोड़ा तो हम जीवन मुक्त कभी भी हो जाएंगे। डेली थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा जीवन मुक्ति का, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इट्स ए कांस्टेंट स्टेट, ठीक है, हाँ, एक दिन एस्टैब्लिश्ड। हमारे को एक दिन अच्छा मूड आ गया, तो अगर खाने को अच्छा नहीं मिला तो भी कहा अरे मैं तो मुक्त हूँ। या दूसरे दिन बढ़िया खाने को आया लेकिन कहा कि अरे मुझे क्या लेना देना जलेबी से, ऐसा कर दिया, इससे नहीं जीवन मुक्त हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसको स्थायी होना, परमानेंट होना हाँ, चाहिए। एस्टैब्लिश होना पड़ता है, हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, तो महाराज कुछ एग्जांपल्स देंगे जीवन मुक्त जो हुए हैं? जैसे कि कथामृत में तो वो साधु थे जो, जिसको ठाकुर ने देखा था, जो पिशाचवत और ये तरह तरह के लोग थे, वो जो आके मिले थे, ये सारे एग्जांपल्स हैं अब ना? वही ऐसा है कि वो पवारी बाबा का है एग्जाम्पल। हाँ, हाँ और वो कब पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो अपने महाराज हमारे सामने ठाकुर का एग्जाम्पल है। अरे ठाकुर का एग्जाम्पल तो है ही, और ठाकुर के ठाकुर तो अलावा है ही, स्वामी ठाकुर जी तो है है, ही। सब डायरेक्ट डिसाइपल्स है, डिसाइपल सब ब्रह्मानंद सारे जी हैं, डिसाइपल्स है। हाँ, लाटू महाराज हैं, सभी है। हाँ, और ये सब डायरेक्ट डिसाइपल जो थे वो ऑल द सब डिसाइपल्स, थे। ये सारे जीवन मुक्त है महाराज, ऑल ऑफ हाँ, देम हाँ, वर एस्टैब्लिश्ड। नहीं तो क्या ठाकुर के शिष्य हो जीवन मुक्त नहीं होगा तो फिर ठाकुर की जरूरत क्या है? जी जी जी, हाँ महाराज ये ईश्वर कोटि के जो है मतलब डिसाइपल्स, वो जीवन मुक्त से भी ऊपर है क्या? हाँ, ईश्वर कोटि तो जीवन मुक्ति से भी ऊपर है। हाँ, तो फिर वो तो पैदाइशी जीवन मुक्त है। छह तो ईश्वर कोटि थे वो तो जीवन डिसाइपल, मुक्त 6। है, जन्म से जीवन मुक्त है। दे वर बाय बर्थ जीवन मुक्त। हाँ, हाँ। 6 ठाकुर के 6 डिसाइपल ईश्वर कोटि थे। हाँ, ईश्वर कोटि। महाराज जी एक प्रश्न करूं महाराज जी सिलसिले में? बोलो, जल्दी बोलो। महाराज जी अगर कोई वासना नहीं रहता है, डिजायर नहीं रहता है, तो जन्म तो होता ही नहीं है, तो ईश्वर कोटि का जन्म कैसे होता है? प्रारब्ध कर्म से वो ईश्वर प्रारब्ध कोटि कर्म का है ही जन्म नहीं, जो है कुछ भगवान के प्रारब्ध हाथ कर्म में होता है। रहता है। वो भगवान की इच्छा से होता है, इच्छा उनकी से इच्छा होता से है। नहीं हाँ। होता। हाँ, ये भगवान की इच्छा से। क्योंकि उसका तो वासना तो रहता ही नहीं है, वासना से ही हमारा पैदा होता है ना। नहीं, भगवान की इच्छा से। स्वामी अच्छा, थैंक यू विवेकानंद जो महाराज। है वो तो समाधि में डूबे हुए थे ना, वो हाँ सप्तऋषि हाँ मंडल के थे। उसने हाँ, वह बालक बन के श्री रामकृष्ण बालक बन के गए, उसके गले में हाथ डाल के कहा कि तुमको आना पड़ेगा। हाँ तो फिर एग्जैक्टली। बट व्हाट अबाउट अदर तो वो तो डिसाइपल्स? जीवन मुक्त थे, वो वो तो तर- मुक्त थे, तो फिर भी उनकी ठाकुर की इच्छा से आए। वो जी महाराज। कलमी शाख का एग्जाम्पल है ना महाराज, जब हाँ, हाँ, अवतार आता है तो सबको लेके आता है, उसी तरह से वो सबको हाँ, उनके कैच साथ लेता है। में लोग आते हैं तो हाँ,
वो लक्ष्मी दीदी ने बोला था चलो। मैं नहीं आऊंगी, तो उसने उसको बोला था। महाराज महाराज जी जी, दैट्स अभी ऑल नहीं महाराज आऊंगी जी। मैं, चाहे कितना भी मेरे को काटोगे मैं तो भी नहीं आऊंगी। महाराज अच्छा जी, ठीक है। महाराज जी कुंडो ब्रह्म ज्ञान, कुंडो प्रणाम महाराज जी। अब आप ही ब्रह्म ज्ञान मत करो भाई, अब हो गया तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, अब ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी मत बनो। कुंडू नहीं है। हाँ महाराज प्रणाम महाराज। हाँ महाराज प्रणाम महाराज, अच्छा। सुनाई दे रहा है? हाँ भाई हाँ, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। हाँ महाराज, हाँ क्वेश्चन करो। श्लोक 535 हियर इट इज सेड। तुम्हारे That- दो क्वेश्चन। हाँ महाराज, दो क्वेश्चन है महाराज। Here श्लोक नंबर 535 here it is said that Atman is the common experience of all. In what sense it is common to all? Brahmavit is rarely found. Can you please explain? No, I again read it again. I have Uh, not heard it. 535 श्लोक में बोल रहा है that Atman is the common experience of all. Hmm. In what sense it is common to all? Experience. Everyone knows that I am. कुत्ता भी Okay. जानता है, कुत्ता भी हाँ। जानता है कि मैं हूँ। हाँ, So that experience is because of Atman. okay, so existence एक का जो एक जो experience- स्टूल है, एक हाँ। टेबल है, हाँ, एक बर्तन है, वो नहीं जानते कि वे आत्मा वो हैं। They are. There is not there. But a dog knows. एक मेढक भी जानता है कि मैं हूँ। महाराज That ये is because of Atman. ये जो छोटा आमी बोलते हैं, ये छोटा आमी का मतलब ये है छोटा कि वो आमी जानता है। कुछ भी बोलो, छोटा आमी बोलो, ये हाँ, हाँ। अहंकार नहीं है। इट इज द बड़ा आमी अहंकार हो जाता है। ओके। ये तो आई इज देयर ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरीवन। जो इट इज द मतलब एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन। ओके, जो एग्जिस्टेंस है, आई एग्जिस्ट, ये तो एक्सपीरियंस है ही है, तो दैट इज बस बस द बस एक्सपीरियंस ऑफ आत्मन। ओके बस मैम, दैट इज इट, दैट इज इट। अंडरस्टूड। हाँ। बट ये जो है कॉमन एक्सपीरियंस आप बोल रहे हो, उसके बाद ही ये बोल रहा है बियॉन्ड द रेंज ऑफ कंडीशनड नॉलेज। मीन्स आत्मन मैं हूं, ये तो मेरा ज्ञान है, बट ये आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान तो मेरे पास नहीं है। ये ज्ञान जो है वो तो समझाने से आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। नहीं आएगा। सो बिना उसके नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा। हाँ, सो इट इज येट द कॉमन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है सबकी है, बट इट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ कंडीशन नॉलेज। ओके, ठीक मान। Because it is, you know, that beyond the range of condition of knowledge in the sense that आदमी को सुखी दुखी हो तो भी वो आई तो रहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ, यस। So that says it is different from, it is independent of your whatever condition knowledge is there. यस महाराज। देन श्लोक 541 महाराज। In this, the sage enjoys the sense objects being the very embodiment of desirelessness. How does a man of realization reconcile this contradiction? ये तो contradictory stage हो गया ना। जैसे जैसे he is enjoying sense objects बोल रहे हैं, but being the very embodiment of desirelessness. हमारा enjoyment जो आता है वो तो desire से आता है। नहीं 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 हाँ। नहीं, हाँ enjoyments are not necessarily because of desire. हाँ, इसको समझाइए महाराज। हाँ तो सफरिंग भी आया, सफरिंग भी तो आया क्या डिजायर से आता है क्या? ना, तो फिर अगर सफरिंग डिजायर से नहीं आता है, एंजॉयमेंट भी डिजायर से नहीं आता, वो तो प्रारब्ध से आता है। अच्छा, हाँ, ओके। he is the embodiment of desirelessness, ये तो आ गया। आपने बोला enjoyment जो है, this is not a function of desire, नो नो, it is a function of प्रारब्ध। हाँ ओके, ठीक महाराज, अभी समझ में आया। यस तो क्या? प्रणाम महाराज। अच्छा दिलीप भाई। महाराज जी ये जो आनंद जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो वही आनंद वल्ली में जो एक्सप्लेन किया गया है श्वेत सूत्र में कि ये वो आत्मन का ही आनंद है
जो हाँ, वो हम तो सर्व जितना भी आनंद है तो वो एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू वेदांत जितना भी आनंद है वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ द आत्मानंद है। हाँ हाँ दैट इज व्हाट। बट वो तो ब्लिस हो गया, वो एंजॉयमेंट की बात तो नो इसमें नो नो नहीं है, नो उसमें नो नहीं आ रहा है। इवन वेदांत के अनुसार ऑल एंजॉयमेंट्स, इवन द एंजॉयमेंट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द आत्मानंद। अच्छा, इवन द स्मॉलेस्ट एंजॉयमेंट, यस। एंजॉयमेंट, ओके। रिफ्लेक्शन, देयर इज स्मॉल रिफ्लेक्शन, 1% रिफ्लेक्शन। हाँ जी महाराज जी। हाँ भाई। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल पहला है पे श्लोक 534, बट इन हिंदी सारे वेद शास्त्र तथा पुराण और सारे पंच महाभूत जिसके द्वारा अर्थवान होते हैं उस विज्ञाता ब्रह्म को भला कौन प्रकाशित करेगा? तो ये समझ में नहीं आया कि भला इसको कौन प्रकाशित करेगा। अच्छा, जिस सूर्य से हाँ सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, हाँ उस हाँ, सूर्य को कौन प्रकाशित करेगा? कोई नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है। और उस सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है? मैं देख रहा हूं, मेरी आत्मा कर रही है। उसको कौन प्रकाशित करेगा? तो महाराज जी मेरी आत्मा प्रकाशित करेगी, ये बात हुई। नहीं, वो मेरी आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रकाशित है, सर्व प्रकाशित है। जैसे सूर्य जो है ना, हाँ उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, हाँ उसी प्रकार मेरी आत्मा को भी कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जी। बरा ये बराबर आपने दो अलग सिमिली बताई, पर यदि क्या मैं ये कहूं कि मेरी आत्मा सूर्य को प्रकाशित कर रही है, हाँ, बिल्कुल अर्थ तो ठीक यही बात हुआ। कही मैंने, वो ठीक बात कही है। अल्टीमेटली मैं हाँ यही तो बताया तुमको। जी जी। अच्छा, तो सर्वोपरि आत्मा है। हाँ, ओके। अब महाराज जी ये इंग्लिश का इसका जो फुटनोट है 534 की, अदर स्क्रिप्चर्स may mean the six systems of philosophy or anything else. तो ये six system of philosophy क्या है? न्याय, Yes, वैशेषिक, जी, योग, सांख्य, yes, मीमांसा और हाँ, वेदांत। अच्छा, जी, ओके। गिने 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 6 हुए कि हाँ हाँ 5 हुए? गिने गिने 6 हो गए, 6 अच्छा हुए, अच्छा 6 हुए महाराज जी गिने। ठीक है। नहीं बराबर, जी जी महाराज जी। हम्म, Now श्लोक नंबर 537, पेज 200. How a man who is hungry and has body pain can remain in pleasure? In this slok is for sadhu and who is not self-illumined. What is the procedure to attain this state of mind? श्लोक नंबर 537. क्या बोल रहे हो तुम? हाँ महाराज जी 537 श्लोक में लिखा हुआ है, a child plays with his toys forgetting hunger and bodily pains. Exactly so does the man of realization take pleasure in the reality without ideas of I or mine and is happy. Now my question is, how a man who is hungry and has body pain can remain in pleasure? I am talking this. My question is, this law is for a self-illumined person and a sannyasi, and not for we common people, right? हाँ, सवाल नहीं था, वही तो ज्ञानी के लिए लिखा हुआ है, ये जी, ज्ञानी का है ये। अच्छा, ओके महाराज जी, ये मेरा हाँ, जानना था। नाउ श्लोक नंबर 539. The knower of Atman do not do any action by himself, but he acts as per the tune of others. So, does it mean these all activities are without any meaning and purpose? यस यस यस। ओके महाराज जी, ये
and the knower of Atman do not do any action by himself. वो अपने ज्ञानी हो गया, उसके बाद में उसको बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया किसी आश्रम का, तो सेक्रेटरी बन गया। हाँ, उसको कहा नहीं उतर जाओ, निकल गया तो निकल गया। अब तुम रिटायर हो गए तो रिटायर होके रहने लग गया, oh अपने yes, से कुछ right. नहीं करता। बराबर, जी जी महाराज, बिल्कुल हाँ। करेक्ट। हाँ, नाउ श्लोक नंबर 542, उसकी फुटनोट है, Python, which seldom moves but waits for the food to come to it. Now my question here is, please explain this simile in context with the slok and the activities of sages. 440, 541, For 542, footnote number 1, 542 footnote number 1. फुटनोट हाँ। समझ में आई, पर उसको इससे रिलेट कैसे किया गया है? क्या वो कभी 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 वो विद्वान जैसा रहता है, कभी हाँ। महाराज जैसा रहता है, कभी शांत रहता है, कभी एक जी। जगह पड़ा रहता है, कभी हाँ। मांगता है, कभी वो उसकी निंदा हो जाती है। जो भी हो उसमें वो की चिंता नहीं करता, जैसा हो वैसा हो, संसार में जैसा रहना हो पड़ा रहता है, अच्छा, उसमें उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। नहीं, ओके जी राइट। महाराज एक अजगर वृत्ति भी है ना, अजगर वृत्ति, हाँ, अजगर वृत्ति में उसमें कोई भोजन को जरूरत नहीं, वहीं पे अपने आप पड़ा आए हुआ तो है, खाएगा, मिल गया तो मिल गया तो मिल गया, मिल नहीं गया मिला तो मिल गया। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ओके। जी, ओके। नाउ श्लोक नंबर 547 पेज 204। हाँ, अब ये महाराज जी, ये राहु केतु का, ये मेरे ख्याल से लास्ट संडे भी झगड़ा आया था कि राहु विद्यमान रहता है तो तकलीफ होती है। नाउ माय क्वेश्चन हियर, महाराज जी, व्हाई राहु इज पेंटेड बैड एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग? इन हिंदी एट पेज नंबर 201 इट इज रिटन, वस्तु का स्वरूप न जानने के कारण ग्रहण के समय सामान्य लोग सूर्य के अग्रस्त होने पर भी अंधकार के कारण ग्रस्त जैसा बोध होने से भ्रांतिवश उसे राहु द्वारा ग्रस्त कहते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा प्रश्न ये कि ये जो हिंदी में लिखा वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं, ये नहीं, राहु ऐसा राहु है। जी, और ये राहु जी कहाँ से आ जाते हैं? यानी वो नहीं, राहु वो तो ये शास्त्रकारों ने राहु केतु बना दिए। हाँ, हम लोग तो जानते हैं कि सूर्य के ऊपर वो चंद्रमा बीच में आ गया, इसलिए सबको सूर्य नहीं दिख रहा है, जी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और तो इसमें सूर्य को क्या लेना देना है, वो चंद्रमा बीच में आ गया है, लेकिन हम पकड़ लिया कि ये राहु ने खा लिया सूर्य को। हाँ, वो तो फिर ये फालतू बातें लोग करते रहते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञानी है उसके लिए बेफालतू बातें करते रहते हैं। ओके जी, बस महाराज जी, ये जो बात कही शंकराचार्य ने, ये वो 7th सेंचुरी में उन्होंने ये बात कही थी, नोइंग फुली वेल ये राहु केतु जो है ये केवल एक माइथोलॉजी है और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, है ना? और जबकि एक्चुअल हमारे साइंस की एस्ट्रोनॉमी ने इसको 400 साल पहले या 500 साल पहले डिस्कवर किया, लेकिन उस टाइम के ये शंकराचार्य और जितने लोग थे उन्होंने तो ये चीज पहले ही जान लिया था। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक ही तो है। मतलब हम लोगों को ये सब चीज पहले ही पता चल चुका था। यही बहुत सारी चीज। महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। What is the meaning of customary consideration of place, time, etc. for giving up this mass of scheme and filth? कौन सा पेज है? क्या है श्लोक नंबर? 557 पेज 207। सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठो मुने अद्वैयानंद परा सदात्मा। ठीक है, बोलो क्या है तुम्हारा प्रश्न? हाँ महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, what is the meaning of customary consideration of place, time, etc. for giving up this mass of scheme and filth? अच्छा, देश काली उचित प्रतीक्षा, यानी
इस हाँ, शरीर ये- को त्यागने के लिए, जी अरे हमें काशी में मरना ही अच्छा है, तो ये देश हाँ। की बात हो गई, हाँ है ना। टाइम की काशी में बात। शरीर त्याग करने से जी, मुक्ति होती जी। है, देश की बात हो गई। या फिर दूसरी जगह है तो एकादशी को त्याग करना चाहिए, हाँ हाँ, या गंगा के किनारे त्याग करना चाहिए। तो ऐसा ये ही। देश काल की बातें हो गई ना। हाँ तो ये कंसिडरेशन जो है वो ज्ञानी जो व्यक्ति है उसको, जो पूर्ण आनंद अद्वय आत्मा में प्रतिष्ठित है, उसके हाँ लिए देश का आदि की प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता। अरे ये शरीर को छोड़ना है, ये तो मांस पिंड इत्यादि राख से का ढेर है, उसको छोड़ने के लिए वो क्यों इनकी से चिंता करेगा। ओके। महाराज जी ये तो बिल्कुल शंकराचार्य जी ने कह दिया, पर यह बात आज की तारीख में कौन मानता है? सब जाते हैं बनारस इसीलिए कि यहाँ से ही मोक्ष मिलेगा, और हम भी ये वो- उम्मीद सब वो- करते चले। ब्रह्मज्ञानी थोड़ी है। वो आज की तारीख में नहीं, शंकराचार्य की तारीख में भी किसी ने नहीं हाँ। माना था। शंकराचार्य की तारीख में भी किसी ने नहीं माना, कोई भी नहीं मानता इन बातों को। सब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। जो ज्ञानी होता है ना उसी के लिए है, ये लिखा तो है सीधी ज्ञानी के बात। लिए, हाँ। अच्छा सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो, जो आत्मा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो हाँ, पूर्ण जी। अपने आत्मा को समझता, आत्मा को आत्मा आनंद में समझता है, उसके लिए क्या लेना देना इसका। अच्छा आई सी। तो हाँ, यानी तुमको 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 सब सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसे शरीर में ऐसे त्याग दूं, ऐसे त्याग दूं, नहीं लेकिन जो बराबर, ज्ञानी है उसके लिए क्या लेना देना। बराबर हमको तो आना ही पड़ेगा काशी। तब मैं तो आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ, मुझे क्या लेना देना। ओके जी महाराज जी। हाँ नाउ श्लोक नंबर 565, पेज नंबर 210। Yes. Maharaj ji, this slok says, so when the apparent limitations are destroyed, the knower of Brahman verily becomes Brahman itself. Is this slok equally applicable to the sadhak who are approaching towards the Brahman? नहीं, Okay, right. ये लक्ष्य जो प्राप्त होगा उसके लिए है, सन्यासी के लिए, साधक के लिए नहीं होगा। Okay, Ji Maharaj ji. And my last question is, Maharaj ji, what is the difference between sannyasi and mumuksha? The Vivek मुमुक्षु, Chudam, सुनो सुनो, हाँ मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा करता है, हाँ लेकिन जो सन्यासी दिखावे के लिए सन्यासी हुआ तो मुमुक्षु नहीं हुआ। अच्छा, तो सन्यासी जो है वो मुमुक्षु भी हो सकता है और नॉन मुमुक्षु भी हो सकता है। हम लोगों ने सन्यास लिया है किसके लिए, मुक्ति के लिए। जी तो हम मुमुक्षु भी हैं और सन्यासी भी हैं, कंफ्यूज नहीं करो। ओके राइट। एक मुमुक्षु यानी मुक्त होने की इच्छा करने इच्छा, वाला, हाँ तो आप भी हो सकते हैं मुमुक्षु और मैं भी हो सकता हूँ मुमुक्षु। हाँ और सन्यासी एक ये सन्यासी भी हो सकता है और मुमुक्षु नहीं भी हो सकता है। बराबर। लेकिन लेकिन अधिकांश सन्यासी जो होते हैं जी वो हमने हमने सन रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करके सन्यास इसलिए लिया कि हम मुक्त हो जाएंगे और ये सन्यास हमको मुक्ति में सहायक बनेगा। ओके बराबर। हाँ 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 बस महाराज जी ये मेरा जानना था मेरा। अब जी प्रणाम महाराज। चलो भाई, अब सतीश। प्रणाम महाराज प्रणाम। हाँ भाई, महाराज जी फर्स्ट क्वेश्चन 535 श्लोका। Here is the self-effulgent Atma of finite power beyond the range of conditioned knowledge, yet the common experience of all. महाराज क्वेश्चन तो वही है जो उन्होंने कुंडू साहब ने पूछा है, पर मेरा ये है कि हाउ कैन वी एक्सपीरियंस द सेल्फ एफ्लुजेंट आत्मा। हम तो जो एक्सपीरियंस करते हैं मैं का एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्फ एफ्लुजेंट आत्मा का नहीं करते हैं। मैं क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा साधना नहीं है इसलिए एफुल्जेंट आत्मा का नहीं करते। जी जी हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता हमारा। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं तो केवल हमारी आत्मा का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एफुल्जेंट आत्मा का नहीं होता, जी क्योंकि जी हम साधना नहीं करते हैं। जी साधना करने पर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा।
Right, Maharaj. Next question, Maharaj. 573. Hence, this bondage and liberation are created by Maya. Just a minute. हाँ, एक मिनट महाराज. महाराज जो लोग ज्योति दर्शन करते हैं साधना में, क्या उसको कह सकते हैं कि वो कुछ सेल्फ इफल्जेंट आत्मा का कुछ देख रहे हैं? भाई अब वो ज्योति दर्शन करते हैं तो वो फिजिकल ज्योति होती है कि आत्मा की ज्योति हो, ये कैसे बताएंगे? किसी का पता है? हाँ. Hence, this bondage and liberation are created by Maya and are not in the Atma. हाँ. Maharaj, where this bondage and liberation, जो liberation है वो आया है माया से. हाँ. लेकिन माया कहाँ से आई है? माया कहाँ से आई? Who has created the Maya? हाँ माया. अब तुमने क्या कि माया भगवान ने क्रिएट की है. जी. तो तुम पूछोगे भगवान को किसने क्रिएट किया? नहीं महाराज, ब्राह्मण को तो माया जो इफेक्ट नहीं करती, ब्राह्मण ने, लेकिन माया भी तो ब्रह्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ. जी. तुमने कहा आत्मा को माया ने किसने क्रिएट किया? जी. तो मैं कहता हूँ ईश्वर ने क्रिएट किया. जी महाराज. तो तुम पूछोगे ईश्वर को किसने क्रिएट किया? जी महाराज. तो फिर मैं बोलूंगा ब्रह्म ने क्रिएट किया. जी. तो तुम बोलोगे कि ब्रह्म को किसने क्रिएट किया? वो चलता ही रहेगा. अब माया जहां से आई वहां से आने दो ना बाबा. जी महाराज. ये शंकराचार्य को भी, शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ही प्रश्न किया या कहीं पे आया है. जी. तो उसने कहा कि ये माया कहाँ से आई, प्रकृति माया कहाँ से आई? तो कहते नहीं, ये यथा याता तथा यातु त्वाम उसको छोड़ दिया. ये उसमें है, श्रीमद् भागवत में है. अच्छा जी महाराज. भगवान राम व्यासदेव से पूछते हैं, कौन थे उनके गुरु थे ना, कौन थे? योग वशिष्ठ से पूछते हैं. योग वशिष्ठ से पूछते हैं. योग वशिष्ठ में है. ये माया कहाँ से आई? देखिए राम जहाँ से आए वहां से आने दो. तुम क्यों चिंता करते हो कि कहाँ से आई और कहाँ से नहीं आई है? इसको दूर करने का प्रयत्न करो बाबा. चक्कर में क्यों पड़ते हो कहाँ से आई कहाँ से नहीं? उसको विदा करो. नहीं, हमारा श्लोक में तो है ना कि जो माया है हमारे मन में है, तो भगवान में नहीं है. भगवान की क्रिएट की है लेकिन भगवान में नहीं है ये माया. उस कंटेक्स्ट में कहा है. नहीं, तो टेस्ट होते हो कहते हो क्रिएट जहाँ पे है वहां से दूर करो ना बाबा. कहाँ से आई इसकी चिंता क्यों करो? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, the world is x plus y. X, that is the mind, and y, that is the phenomenal world. महाराज जो साधना करने के बाद, रियलाइजेशन के बाद, x तो जो डिसॉल्व हो गया, लेकिन ये y तो रहता है ना. वो तो जब तक x और y दोनों होंगे तभी तक y रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. अब तुम x नहीं है तो कौन बता सकेगा कि एक y है कि नहीं है? स्वामी जी खुद कहते हैं जी कि जिसको रियलाइजेशन हो जाता है उसके लिए वाई डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वाई रहता है. स्वामी जी खुद कहते हैं जी कि जिनके पास एक्स है उनके लिए वाई हमेशा रहेगा. लेकिन जो एक्स डिसअपियर हो गया है उसके लिए वाई नहीं रहेगा. जी. कहने का मतलब कि माया तो रहेगी लेकिन जो रियलाइज हो गया उसके लिए माया नहीं है. उसके लिए नहीं है. उसके लिए ठीक महाराज. प्रणाम महाराज. इतने. अच्छा चलो निवेदिता. जी महाराज मेरे 3. अरे तुम तो इतनी देर से तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर तुम्हारा नंबर आ गया. महाराज वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक्ष्य एंड अलक्ष्य आपने तो बताया, और एक बार बताइए. कोई लक्ष्य यानी कोई हमारे जीवन का लक्ष्य है. हाँ बोलते ना, I want some goal. What realization is my goal? या concentration of my mind is goal. हमारे को समाधि इस गोल है, चित्तवृत्ति मेरा गोल है. ये हुआ लक्ष्य. और अलक्ष्य हो गया. अलक्ष्य कोई गोल नहीं है. अच्छा. ये अपने साहित्य की दृष्टि से लक्ष्य अलक्ष्य बोल. ओके. अच्छा दूसरा प्रश्न, ये मेरा बहुत पुराना प्रश्न है, वो प्रज्ञान घन क्या होता है जो इसमें? इंटेंस नॉलेज. इंटेंस नॉलेज यानी ज्ञान स्वरूप.
ज्ञान स्वरूप घन, ब्रह्म। ज्ञान घन, ज्ञान स्वरूप, यानी एवरीथिंग बिकम्स नॉलेज। और आरती में जो हम लोग कहते ना चित घन काय, हाँ, चित घन का है। जो ठाकुर जो वही है है वो ठाकुर। हाँ इंटेंस नहीं, ठाकुर जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। हाँ, भाई और अज्ञान घन नहीं है, वहां पे चैतन्य घन है। चैतन्य घन, और ये है ज्ञान घन। ज्ञान घन, घन शब्द का तो इंटेंसिटी होती है। ठीक है ठीक है, ये और समझ। जो है कोई भी चीज ले लो ना, वो डेंस, यानी ये डेंस। मिठाई जो है तो डेंसली स्वीट, डेंस स्वीटनेस। हाँ हाँ हाँ, तो ये डेंस घन शब्द है, वो तो डेंसनेस के बारे डेंस। में है। और प्रज्ञान घन का अर्थ है यहाँ ज्ञान स्वरूप, वहां बाकी फिर कुछ चीज नहीं रहेगी। बाकी इस उपाधियों को हटा दिया। हाँ उपाधियों को हटा देने पर फिर क्या बचता है? केवल इंटेंस ज्ञान। हाँ। महाराज एक्चुअली जो इंद्रिय से ज्ञान होता है, इंद्रियों से, हाँ, उसके लिए तो आत्मा ही है, तो उसी को फिर उसी के नहीं थ्रू नहीं 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 प्रज्ञान नहीं, कहते हैं। ये तो छोटे छोटे ज्ञान है, वो नहीं। हाँ हाँ प्योर, यानी उसमें देर इज नो सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस नॉलेज। इट इज प्योर नॉलेज। प्योर नॉलेज। We get very difficult to even explain it or understand it. ओके ओके। महाराज जी, जैसे ऑर्डिनरी पर्सन में चित्त होता है, तो ठाकुर में चित्त घन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड ठाकुर। ना वो क्या है कि हमारा थोड़ा सा ज्ञान चैतन्य हुआ। ठाकुर जो है वो समाधि में इंटेंस, नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस ना। हाँ हाँ, वहां पे वही बॉडी कॉन्शियसनेस भी नहीं है, माइंड कॉन्शियसनेस भी नहीं है। इट इज प्योर कॉन्शियस। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 567 श्लोक में, जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्ति तो होती, पर उनको क्या विदेह मुक्ति भी होती है? विदेह मुक्ति होती है जब मरने के ऊपर जो बॉडी, विदेह, हाँ हाँ विदेह हाँ, मुक्ति का शब्द समझ लो। अच्छा। विदेह, हाँ, देह से यानी मुक्त। बॉडी नहीं रही, नहीं नहीं, हाँ देह नहीं रही, विदेह मुक्त। हाँ, वी यानी नो, नो। नो नो, ओके हाँ, विदेह, विदेह, देह रहित मुक्ति। ओके। तो क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, हाँ अच्छी हाँ, बात है ये। हम लोग जब मर जाएंगे तब क्या होगा? हम लोग को ट्रांसमाइग्रेशन होगा, कैसे होगा? दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, क्यों जाएंगे? डिजायर के कारण। नहीं, माँ ने क्या बोला है? हाँ यानी मेरे जिसने शरण ली है वो मरने के बाद मुक्त हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और हमको भी सदगुरु से मंत्र मिला है, हाँ तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हाँ। अब तुम आप वापस आना चाहते हो? कह रहे क्या जल्दी नहीं मुक्ति नहीं, हो हम नहीं जाएगी? आना चाहते। नहीं नहीं यार, थोड़ा तो भोग करना बचा हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, यदि यदि थोड़ा भी ब्रह्मचर्य नहीं। जी का आशीर्वाद देना बाकी रहेंगे तो तो आना। माँ बोलती है, हाँ माँ बोलती है कि मैंने जिसको मंत्र दिया है वो मरने के बाद मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर तुम इसी जन्म में आनंद पाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो साधना करो। यानी यह है कि माँ शारदा के जो शिष्य थे उनको विदेह मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना साधना करनी जरूर। होगी। ये अच्छा, डिफरेंस तुम अच्छी तरह समझ लो। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात बताया। इसीलिए मैंने कहा, तुम जो हाँ, कर रहे थे खटखट जल्दबाजी कर रहे थे, उसमें ये बोल रहा था हम्म कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना। विदेह मुक्ति तो किसी कारण से हो सकती है। ओके, प्रणाम अच्छा, महाराज। ओके ओके। चलो, रीता विश्वाल है? यस, प्रणाम स्वामी जी। आइए आइए आइए, आ जाइए। माय श्लोका 554 पेज कहाँ है आपका? 228। आपका दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है? नहीं नहीं, आगे आगे। what are the limitations of perfect knower of Brahman destroys? How can we, who are at the very infancy of spiritual life, start to identify and destroy these limitations? देखो, ये लिमिटेशन शब्द जो है ना, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है, हाँ, बट द ओरिजिनल संस्कृत शब्द है उपाधि। उपाधि, yes.
उपाधि, तो उपाधि कौन सी होती है? ये हमारी बॉडी, माइंड, सेंसेस, ईगो, ये सब के सब उपाधियां हैं। इनको yes. यहाँ पर लिमिटेशन कहा गया। Oh, इनके कारण लिमिटेशंस हो जाते हैं, हम हम्म। आइडेंटिफाई इनके साथ हो जाते हैं, और हम्म। उसे मुक्त करना, जीवन मुक्ति में क्या होता है? इन सबको नाश किया जाता है। वे डिसआइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद द बॉडी, माइंड, सेंसेस, लिमिटेशंस से डिसआइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी गिव अप दोस आइडेंटिफिकेशंस एंड become free. So this happens by sadhana, this happens by vichar. You know that I am not the body, I am not the mind, I am not the ego. These are limitations caused by ignorance. These are the upadhis. उनको साधना के द्वारा, विचार के द्वारा इसको दूर कर। Is that okay? Yes, Swamiji. Okay. Now it is clear. Okay. शिवानी, महाराज माँ नमस्ते माँ। शिवानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, चलो। महाराज मेरा क्वेश्चन है श्लोक 542। इसमें जो क्वालिटीज बताई गई हैं वही क्वेश्चन है कि इन एवरी रियलाइज्ड पर्सन द सेम फीचर्स सीम्स। 542 जी, जिसमें लिखा है समटाइम्स अ फूल, समटाइम्स अ No, सेज। no. Sometimes means it is some jnani is like a fool. अच्छा Some jnani is like a wise man. अच्छा एक व्यक्ति में सबके सब होंगे ये नावश्यक नहीं है। अच्छा, मैं वही समझ Sometimes he will be fool, he might be fool. Sometimes he might be a wise person. That also is possible. But itne so many in one person, it is not there. ठीक है। Say Maharaj, for can we- example, Shri Ramakrishna जो है वो sometimes Shri Ramakrishna was like a child. Sometimes he was a wise man. Sometimes he was in samadhi. तो ये श्री रामकृष्ण के लिए, बाकी अधिकांश लोग जो हैं वो इतनी सारी एक ही व्यक्ति में सब, all these is generally not there. One or two characteristics might be there. महाराज जी, स्वामी विवेकानंद में भी था। कभी उनको राजा के हाल में रखते थे, रीगल स्प्लेंडर, कभी वो एकदम ऐसे घूमते थे, लोग पत्थर भी मारते थे, और कभी वो बहुत ज्ञानी रूप में दिखते थे। तो ब्रह्मानंद जी कभी बच्चे जैसा रहते थे। हाँ। You see, characteristics of child or characteristic of a dull man, ये तो जनरली आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कई बार नहीं मिलते। ठीक है। But ये मतलब ये है कि there are so many, but don't expect them all in one person. That is my idea. Is that okay? जी महाराज। हाँ महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक 546। यानी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मोर इम्पोर्टेंट इज परमानंद सुखितः। इस श्लोक में जो है ना, हाँ जी, क्वचित मूढ़ो सतत परमानंद सुखितः, लास्ट लाइन में जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो that is more- लिखा है thus lives the man of realization ever happy with supreme bliss। हाँ, so that is the most important idea. हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दिखे वो, लेकिन अंदर आनंद में रहता। ठीक है। Second नेक्स्ट question. क्वेश्चन, हाँ जी, 546 है श्लोक। हाउ कैन वी लिव लाइक दिस? इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ऑल्सो लिव लाइक दिस? mentioned here in the shlok, pleasure or pain, good or evil, affects only him who has connections with the gross body, etc., and identifies himself with these. How can good or evil or their effects touch the sage who has identified himself with the reality and thereby shattered his bondage? कौन सा पेज नंबर, वो श्लोक नंबर बोला? 546। 546। हाँ, नेक्स्ट पेज पे ही है महाराज। ठीक है। हाँ, जय वाह। तो उसमें क्या है कि ये प्रश्न ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज ऑल राइट। यस, यू कैन हैव दिस, दिस इज द आइडिया। बच्चे की तरह खेलता है, वही तो है ना।
शुभम व अशुभम, शुभ फल हुआ है अशुभ फल हुआ है, किसी की चिंता नहीं करता है। बिल्कुल। स्थूलादि संबंधवतः अभिमानिनः सुखम दुखम शुभे शुभे, जो है जी। वो जो स्थूल आदि से संबंध में ध्यान है। इफ यू कंसिडर योरसेल्फ टू ए बॉडी, तुम्हारे सुख दुख इत्यादि होंगे, लेकिन इन सब से बंधन को अगर त्याग कर दोगे तो उसमें शुभ अशुभ ये सब कुछ नहीं लगे। So that is the highest ideal and you try to practice it, it is possible to attain it. में रह के भी हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉसिबल है ना? करके देखो। ठीक है, कुछ तो कर भी रहे हैं महाराज। चलो चलो, वेरी गुड, अच्छा है, करो ना। एक्चुअली ये जीवन मुक्ति के जो वर्णन किया गया है यहाँ पे, तो उसमें एक श्लोक और भी है, ये कहीं पे है कि जीवन मुक्ति के लिए हमेशा अपने आप को जीवन मुक्त सोचना चाहिए। करते करते सोचते सोचते हम जीवन मुक्त हो जाए। इसको अगर बार बार पढ़ के अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो तो ये रियली। महाराज जितने भी उनके प्रैक्टिस बताए हैं जीवन मुक्त के, वो अभ्यास तो करना चाहिए हमें सब में, चाहे करना चाहिए तो जी, जी साध्य जो उनके साध्य हमारे साधन है जो भी। जी जी। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड, श्लोक 577 में व्हाट्स दिस प्यूरिफाइंग द होल वर्ल्ड, मतलब इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक बदमाश आदमी अगर कमरे में आ जाए, तुम्हारा गुंडा बदमाश जो बड़ो कामी होवे, चोरी हो चोर होवे सब होवे, तो उससे आपका कमरा अपवित्र होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बिल्कुल, हाँ, नेगेटिविटी भी आ जाएगी सब। तो फिर और जो भगवान में जीवन मुक्त हुआ, तो वो तो जहाँ कहीं भी जाएगा उसको पवित्र करेगा। तो अच्छा, ठीक है। तो वो तो इतने अधिक होते हैं कि जहाँ जाते हैं सारा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। एक शहर में आए तो सारा शहर जो है पवित्र हो जाएगा ठाकुर के कारण। तो ये महापुरुषों के ऊपर है जो जीवन मुक्त हैं और सदा भगवान के भजन में लगे रहते हैं, जहाँ जाते हैं वो स्थान को पवित्र करते हैं। तो यहाँ पे उसको और उदार करके बनाया कि वो संसार को पवित्र करते हैं, केवल एक स्थान को नहीं, एक कमरे को नहीं, एक मकान को नहीं, सारे संसार को पवित्र करते हैं। बोलो निवेदिता। महाराज ये जो पवित्रता है वो शायद मुझे लगता है सबको नहीं समझ में आएगी, जिसका चित्त थोड़ा पवित्र हुआ उसी को समझ में आएगी। अब ये देखो, अब ये बोलो उसको, निवेदिता को, तो उसको बोलो शिवानी को। शिवानी को आगे हमारा समझ में। जी ने तो डायरेक्ट नहीं, प्रश्न ये है कि वो अपने आचरण से अपने सारे यानी घनीभूत डेंस पवित्रता ना उनके जीवन में, तो जहाँ जाएंगे उसको पवित्र करेंगे, सारे संसार को पवित्र करते हैं। ये बात कितना अद्भुत है। देखो, प्रणाम महाराज। इसीलिए महाराज आपके पास जाने के लिए हमको इतना अच्छा लगता है। हमेशा हम लोग जाने की कोशिश करते हैं ना, आपसे मिलने की कोशिश। ये रोज तो मिलते हो, संडे को तो मिलते हो। नहीं, इसी के कारण है महाराज। आपको एक पवित्र वातावरण रहता है अलग से। महाराज सोच ही पवित्र कर देता है। हो गए, सबके हो गए। क्वेश्चन सब हो गए। 10 लोगों ने क्वेश्चन इस बार पूछे थे, ये सब हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरा तरफ से ये है कि भाई मैं एक फीडबैक चाहता हूँ। आई वांट ए फीडबैक फ्रॉम यू। कैसा चल रहा है हमारा जूम मीटिंग? बहुत बढ़िया चल रहा है। अनेक सजेशंस जो चल रहा है, क्योंकि ऐसा है कि अब ग्रेजुअली नंबर जो है ना, पार्टिसिपेंट जो है वो कम हो गए, फिक्स नंबर हो गया है। 30, 21, 22 ज्यादा से ज्यादा होते हैं। पहले 30 तक हो जाया करते थे। पास आ रहे हैं तो इसलिए एवरीवन इज करता है। नहीं, ये 21 जो है 21 जो है वो 21 पक्के हो गए।
हाँ, ये बात बराबर बोली है अब इसमें से कोई हिलने वाला वो नहीं एकदम है। पक्के हो गए हैं। अब ये ठाकुर ही हिला सकता है हमको हाँ, पद जड़ स्वामी से, जी, बाकी तो हम numbers do not तुम लोग तो matter. पक्के हो गए, ये पक्के हो गए, लेकिन ऐसा है, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स जो हैं कुछ पार्टिसिपेट करवाइए, थोड़ा सा करिए, उनको भी फायदा होवे। ऐसा No, तुम there are करते many हो। participants, but they don't attend. हाँ, why do you that? So you have to see that is your responsibility that they are not, they don't miss. ये देखो पीयूष जी आज आए हैं, पीयूष जी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। हाँ, महाराज जी, पीछे 2-3 बार मा- सिर्फ मिस हुआ था, अदरवाइज प्रेजेंट है हमेशा। अच्छा, महाराज very good। अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए सबको। हाँ, अच्छा हम लोग बोलते तो है पर अंदर से उनको आता नहीं है, फिर नहीं आते। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, और चलो। कोई पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक हो तो हमको तुम एसएमएस कर सकते हो, ठीक जी, है। ठीक है महाराज। यस चलिए। क्योंकि अब हम कर रहे हैं भाई, क्या मालूम कैसा चल महाराज रहा जी, है। महाराज जी एक प्रश्न लास्ट, अभी नेक्स्ट क्लास क्या होगा? विवेक चूड़ामणि तो खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास क्या होगा? ये हो गया है, हमने वो सब पॉजिटिव है। वो है वो टुवर्ड्स द गोल्ड सुप्रीम। हाँ, ठीक है yes, महाराज। yes, yes. Yes, Towards the स्वामी जी. वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। स्वामी जी. किसका है महाराज? परमार्थ प्रसंग, हिंदी में उसका नाम है परमार्थ हाँ। प्रसंग, बंगाली में परमार्थ प्रसंग है, टुवर्ड्स द हाँ। गोल्ड सुप्रीम। हाँ, वो Yes. आपको, वो आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा, अरे हाँ। बाबा ये विवेक Yes, yes. चूड़ामणि से बचे, इतना वीराजनंद। कठिन था, इतना नहीं, सरल। स्वामी जी, it is same. It is same. While reading Viveka Chudamani, I was also reading Gold Supreme. अरे महाराज आज ही मैं उसको गम से बराबर पुस्तक को ठीक किया। क्या क्या? आज ही वो परमार्थ प्रसंग मेरे सामने निकल गया और थोड़ा फट गया था ना, उसको गम से मैंने एकदम ठीक ठीक किया। तो सोचा रोज पढ़ूंगी। अभी हो चालू हो गया। छोटी किताब है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल कोई हाँ। फिलोसफी नहीं है वहाँ पे, वो हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छी है। करीब 5-6 क्लासेस हमारी उसमें हो जाएंगे, उसके बाद ओके। देखेंगे। और ठीक है महाराज। Yes. जी महाराज। जी महाराज। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। रेणुका बहन।